Hello guys, this is Nitisha and welcome back to Pawfeet. She is Pinky. She does not like sitting in front of a camera. I am forcing her to do so. So Pinky, say hi, hi, hi. Okay, she's not clearly interested. Okay, so let us talk about tics and the different variations that we come across in terms of when our dog is infected with tick fever and so on. So as per my description, I have mentioned that ticks can kill your dog. So yes, ticks can definitely kill your dog because I have been through that journey. My dog, my elder dog Rex, had tick fever and he was literally on deathbed, and I know how he has come through that phase, and today no doubt he is totally fine, but it was a very bad scenario. I mean, at that particular time it was really bad. So these are the pointers that we are going to discuss today, and how exactly we can save our dog from going through that process of when they are totally into a situation where it is very difficult for them to come out. So let's not just talk and discuss through the pointers. So firstly, what we are going to discuss are ticks. What exactly ticks are? So ticks are little parasites that stick on your dog's skin. Okay, now after sticking that, what exactly they do? Correct? So after sticking on the dog's skin, the only job that they have is they suck the blood out of your dog. Okay, so that exactly what they do. So once it's a process, okay, for example, you can see the slide here. It's a almost process of hours and hours where they are little parasites. They become this big after sucking the blood of your dog, and once that part is done, what they'll do is they'll leave the body, and then they will crawl up to the walls and the furniture corners and everywhere, and they will start the breeding process. Okay, now the breeding process is not maybe 5 to 10 ticks again, but it multiplies in thousands. They lay thousands of eggs, and again once that part is done, again those ticks which are newborn, they are going to crawl up and come again on your dog's body only. So now let us discuss about the sources of ticks and what exactly are the major sources of ticks and where exactly your dog can get them. Okay, so the first major part is, for example, when you take your dogs for walk, right? So वहाँ पे जब वो grasses में जाते हैं या bushes में जाते हैं, करेक्ट? सो दैट इज़ द मेन थिंग. सो टिक्स जो होते हैं वो लोग ग्रास पे होते हैं, ठीक है? तो जब आपका डॉग ग्रास पे से जाता है ना, तो टिक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ग्रास के ऊपर से आपके डॉग के बॉडी पे जंप कर लेते हैं, एंड उसी तरह दे कम बैक विथ योर डॉग. तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द मेजर सोर्स. इस तरह से मतलब प्लांट्स के बीच में से या ग्रासेस के बीच में से आपके डॉग को जो है वो टिक्स पकड़ सकते हैं. सबसे बड़ा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका डॉग जो है वो दूसरे डॉग्स के साथ सोशलाइज करता है, ठीक है? तो और अगर वो जो दूसरा डॉग है या दूसरे डॉग्स है अगर उनमें टिक्स है, तो फिर आपके डॉग के ऊपर भी टिक जो है वो चढ़ सकते हैं. ये सबसे मेजर दो सोर्सेज है जहाँ से आपके डॉग्स को जो है वो टिक चढ़ सकते हैं बॉडी पे, ठीक है? तीसरा सोर्स ये हो सकता है कि अगर आपके डॉग को ऑलरेडी टिक्स हो चुके थे या हैं, तो जब वो अपने आपके घर में ही जगह बना चुके हैं कहीं ना कहीं कोने में या तो फिर फर्नीचर के अंदर, तो वहीं से जब उनका ब्रीडिंग प्रोसेस हो जाएगा तो वही टिक्स बाहर आएंगे और आपके डॉग्स के ऊपर चढ़ेंगे. तो ये तीसरा मेजर सोर्स हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा पता है कि आपके घर पे टिक्स ऑलरेडी घूम चुके हैं, सारे जगहों पे जा चुके हैं, क्योंकि कभी कभार टिक्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग ज़मीन पे आपको दिखेंगे, कभी कभार आपके बॉडी पे भी चढ़ जाते हैं. तो जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक बार ये पेस्ट कंट्रोल करवा लो. तो क्या हो गया, उसको जड़ से आपने निकाल दिया, मतलब एटलीस्ट यू नो कि आपके घर से तो वापस आपके डॉग को टिक्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है? सो दिस वाज क्लियर. आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट द सोर्सेज ऑफ टिक फीवर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टिक फीवर. ओके,
अब टिक फीवर क्या होता है? सो टिक फीवर एक तरह का फीवर ही होता है, यस, बट ये टिक्स के ज़रिए होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज जो टिक्स होते हैं जब ये आपके डॉग की बॉडी पे चढ़ते हैं, तो जैसे कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जब मैंने देखा हुआ है कि जो मेरे कलीग्स हैं या मतलब जो पेट पेरेंट्स हैं, तो उनके डॉग्स को जब टिक्स होते हैं तो मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि इमीडिएट एक्शन आप ले लो अगर टिक्स हुए तो मैं कॉमनली ये जवाब सुनती हूँ कि अरे यार नहीं ना, नहीं एक है या दो ही है तो अभी इसमें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक दो टिक से कहाँ टिक फीवर होता है। तो या तो फिर मतलब तो इसमें क्या होता है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि मेरे डॉग को अगर एक या दो टिक ही है तो उसको टिक्स नहीं होंगे, या मेरे डॉग को हज़ारों टिक्स है मतलब उसको तो टिक फीवर है ही है। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो टिक फीवर जो है टेक्निकली पहले ये समझना है कि ये कैसे होता है। तो टिक फीवर जो है वो एक इन्फेक्टेड टिक से होता है, ठीक है। अब इन्फेक्टेड टिक जो है ये हज़ारों में भी हो सकता है, या वो हज़ारों में वो टिक है ही नहीं इन्फेक्टेड टिक, या तो वो 3-4 टिक्स जो है उसमें से कोई एक टिक है जो इन्फेक्टेड है। तो ये वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर हमें ये नहीं समझना है कि अगर हमारे डॉग को फीवर नहीं है या तो फिर मतलब फिर भी ज़्यादा टिक है पर फीवर नहीं है तो उसको टिक फीवर नहीं हो सकता है। जब टिक्स जो है ये सारा ब्लड जो है ये सक करते रहते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है। तो जब आपके डॉग की बॉडी से जो ब्लड है ये वो ब्लड को सक करके बड़े होते जा रहे हैं, मतलब आपके डॉग के अंदर का जो ब्लड है ये कोई चूस रहा है, राइट। सो उनको उससे भी इन्फेक्शन होता है, इंटरनल बॉडी इन्फेक्शन। मेरे डॉग को लास्ट ईयर हुआ था, इसलिए आई नो अबाउट दिस, क्योंकि वो मेरे डॉग के अंदर काफ़ी टाइम तक थे, ठीक है। सो उसके वजह से उसको इंटरनल इन्फेक्शन जो है वो पैदा हो गया था, ठीक है। सो टिक फीवर हमने ये समझ लिया दैट टिक फीवर इज समथिंग विच कैन बी गिवन बाय वन इन्फेक्टेड टिक, एंड येस दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली टिक फीवर इज़। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो टिक फीवर के सिम्टम्स ये होते हैं, जो मेजर सिम्टम्स होते हैं उसमें से एक हो गया लॉस ऑफ एपिटाइट, या तो खाना बिल्कुल ही बंद कर देगा डॉग। सेकंड जो होता है दैट इज़ फीवर, उनका जो फीवर रहेगा वो 104 प्लस रहेगा, ठीक है। थर्ड जो होता है वो वॉमिटिंग होता है, तो ये थर्ड सिम्टम हो गया। फोर्थ डायरिया। फिफ्थ जो हो गया दैट इज़ जॉइंट पेन्स हो गए। सिक्स्थ हो गया एब्डोमिनल पेन, तो ये कुछ हो गए। सातवां हेडेक होता है। सो ये बहुत ही बेसिक सिम्टम्स है जो आपके डॉग को टिक फीवर के वक्त हो सकते हैं। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ है। वन इज़ कि आपका डॉग सारे ही सिम्टम्स दिखा रहा है, सेकेंड इज़ आपका डॉग इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं दिखा रहा है, एंड थर्ड इज़ कि इनमें से कुछ सिम्टम्स जो है वो आपका डॉग दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। सो इट कैन वेरी फ्रॉम डॉग टू डॉग। इट इज़ नॉट दैट हर डॉग सिम्टम दिखाएगा, इट इज़ नॉट दैट हर डॉग सिम्टम नहीं दिखाएगा। हर डॉग का केस जो है वो अलग होता है, ठीक है। सो ये हमें समझ में आ गया सिम्टम्स किस तरह से हमको दिखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पहले मेंशन करनी थी टिक्स के टाइम पे। सो टिक्स जो है ये टेक्निकली कब दिखते हैं, ये तब दिखते हैं ज़्यादा करके जब समर सीज़न होता है। मतलब पकड़ लो आप फरवरी मार्च से लेके सितंबर तक ये ज़्यादा करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये समर सीज़न होता है और इस टाइम पे ये लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, मतलब आपके पेट पेरेंट का कोई अगर सर्कल होगा तो उसमें आपको बहुत सुनने में मिलेगा कि यार मेरे डॉग्स को टिक्स हो गए, मेरे डॉग्स को टिक्स हो गए। तो ये इनका मेन सीज़न होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है ये इसके टाइम पे नहीं आएंगे, मतलब बाकी के जो मंथ्स है या बाकी की जो सीजन्स है उस टाइम पे नहीं आएंगे। ये लोग तभी भी आ सकते हैं, जस्ट इनकी प्रोबेबिलिटी, इनके चांसेस, और ये लोग एक्चुअली जो है वो फरवरी से सितंबर के टाइम पे ज़्यादा करके दिखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट के इसका डायग्नोसिस क्या होता है, मतलब टिक फीवर को कैसे ट्रीट किया जाता है, एंड वेट्स जो है वो यूजुअली किस तरह से आपको हेल्प करते हैं। सो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि क्या ये ट्रीटमेंट जो है ये घर पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके डॉग में ना आपको टिक्स दिखेंगे,
तो जब आपको ये चीज़ दिख रही है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मतलब अगर आपने यहाँ पे ही ना उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है तो आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए हमको जाना ही नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया चीज़ आप यहीं पे कर सकते हो कि आप यहीं पे उसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर यहाँ पे जब आपने उसको कंट्रोल कर लिया है तो आगे का रास्ता बहुत ही नॉर्मल है, आगे कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। पर किसी भी रीज़न के वजह से अगर टिक्स यहाँ पे ये स्टेज पे आप नहीं निकाल पाते हो और वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, मतलब उसके लिए आप एक रास्ता बनाए जा रहे हो, आपने ट्राई किया नहीं जा रहा है, आपने ये भी ट्राई किया नहीं जा रहा है, आपने ये भी ट्राई किया नहीं जा रहा है, सो ये टाइम पीरियड में डैमेज जो है ना ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो इंटरनल डैमेज होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कब आपको डॉक्टर बनना है और कब आपको डॉक्टर नहीं बनना है, मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज़ बताने वाली हूँ। सो जब आपको टिक्स दिखते हैं सो डेफिनेटली उसी टाइम पे आपको उसका खात्मा करना है। सो जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है या जो होम रेमेडीज़ है दैट वी विल बी सून डिस्कसिंग इन द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट विल बी द लास्ट पॉइंटर कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो एक तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको वहीं पे खात्मा करना है, पर ऐसा हो सकता है कि आपको तभी उसके बारे में पता नहीं चला या कोई भी रीज़न हो गया कि आपको नहीं पता था, आपने कोई एक्शन उस वक्त आप नहीं ले पाए या आपने लिया भी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ा और अब आपके डॉग को टिक फीवर होने के चांसेस है या सिम्टम्स दिखाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका डॉग जो है वो अगर सिम्टम दिखाना चालू कर देता है सो आपको घर पे डॉक्टर नहीं बनना है, आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। आपके डॉग को आपको वेट के पास लेके जाना है। जो डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर है वो आपको इस चीज़ में आगे हेल्प करेंगे, जो क्वालिफाइड है, जिनको पता है क्या करना है। अब इस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर आपको पूछेंगे कि बच्चा क्या सिम्टम दिखा रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको बताओगे कि जो जो प्रॉब्लम आपका डॉग जो है वो फेस कर रहा है, क्या सिम्टम्स दिखा रहा है या उसको फीवर है। सबसे पहले तो डॉक्टर जो है वो फीवर चेक करेगा। 99% ऑफ द केसेस जो है उसमें फीवर जो है वो 104+ दिखाता है, क्योंकि अगर बच्चे को टिक फीवर हुए हैं तो देयर आर चांसेस कि उसको ऑलरेडी फीवर जो है वो चल रहा है। हो सकता है कोई डॉग जो है वो फीवर नहीं दिखाए, उनका फीवर उतना नहीं होगा, बट अगर दूसरे सिम्टम्स दिखा रहा है, जैसे कि हमने सिम्टम्स में उसको डिस्कस किया है कि कुछ सिम्टम्स दिखा सकता है, कुछ नहीं दिखा सकता है। सो इन एनी केस डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बताएगा। और जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि बॉडी में प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कि उनका किडनी लेवल कितना बड़ा है, फिर आप लिवर का डैमेज होने का चांस है कि नहीं है, कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलती है। देर आर डिफरेंट टेस्ट एज वेल, बट दोज आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड बिकॉज वो सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं होते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स, बट येस दीज आर द बेसिक थिंग्स जो होते हैं। एंड एज पर द ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर है उसके बाद वो आपके डॉग का जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से डैमेज हुआ रहेगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। अगर सीवियर स्टेज पे पहुंच चुका है केस, जहाँ पे खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, किडनी का लेवल जो है, क्रिएटिन लेवल जो है वो बढ़ चुका है एंड लिवर डैमेज चालू हो चुका है, तो ऐसे सीरियस केसेस जो होते हैं उसमें डॉक्टर जो है दैट विल सजेस्ट कि आप उनको फ्लूइड्स जो है, मतलब सलाइन ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दो, इसका मेडिसिन पे असर नहीं होने वाला है। सो अगेन इट इज़ गोइंग टू डिफर केस टू केस ओनली एंड नॉट आई कांट टेल यू एज ऑफ नाउ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, करेक्ट। सो वो हर केस डिफरेंट होता है, पर येस दीज आर द 2 मेन स्टेजेस जब आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। एक तो टिक्स अगर आपको दिख गए हैं तो टिक्स का खात्मा वहीं पे करना है, अगर नहीं हुआ है और अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है। सो दीज आर द मेन डायग्नोसिस के इस तरह से आपको अलर्ट रह के उसको कैसे हैंडल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, ओके। प्रिकॉशंस एंड प्रोडक्ट्स आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आपको टिक्स दिखना शुरू हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके डॉग का टेम्परेचर जो है वो डेली बेसिस पे चेक करना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा कि जब तक आप उसको घर से ट्रीट कर रहे हो टिक्स के लिए, ठीक है, उनको फीवर है कि नहीं है आपको ये पता चलेगा,
ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मैंने शुरुआत में नहीं की थी, एंड इस बारी मैंने की थी। तो जब मुझे पता चला कि उसको टिक फीवर हो चुका है अगेन, मैंने इमिडिएटली एक्शन लिया था। ये आपको बहुत ही हेल्प कर देता है एक्शन लेने में, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो होम रेमेडी हम कर सकते हैं कि आपको दिखा है कि हाँ टिक होना शुरू हो गए हैं, तो कुछ होम रेमेडी करते हैं। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ नीम ऑयल एंड यू कैन यूज़ एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। ये दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो इसको आप कॉटन जो होता है ना, कॉटन में सोक करके आपके डॉग की बॉडी पे ना उसको प्रॉपरली स्किन के अंदर तक उसको रब करना है। कोटिंग पे नहीं करना है, जो बाल होते हैं डॉग के वहाँ पे कोट पे नहीं करना है। जो अंदर का स्किन होता है ना, वो स्किन की लेयर पे वो जो मेडिसिन है वो जानी चाहिए, मतलब जो आप यूज़ करोगे नीम ऑयल और एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ हो गई होम रेमेडी। अब अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब जब आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो किस किस तरह के कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। सो लेट अस डिस्कस दोज पॉइंटर्स। सो सबसे पहला कमर्शियल प्रोडक्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज टिक पाउडर, विच इज़ एंटी टिक पाउडर एंड एंटी टिक शैम्पू, ओके, टिक शैम्पू। सो ये दोनों चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आई वोंट गो इन टू दैट डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोज़ टू सी व्हाट आर द टाइप्स एंड किसको कैसे यूज़ करना है। और एल्स आई विल बी मेकिंग अ वीडियो इन फ्यूचर कि इसका यूजेज वगैरह क्या है, कैसे है, बट नॉट इन दिस वीडियो। सो एंटी टिक पाउडर एंड टिक शैम्पूज आर समथिंग विच यू कैन यूज़। देर आर चांसेस कि इससे आपको फ़र्क पड़ सकता भी है और नहीं भी पड़ सकता है। हर डॉग इनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सो यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिसाइड कि इससे आपके डॉग को फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बट दीज आर द टू थिंग्स। इसके अलावा थर्ड इज़ मेडिकेटेड बाथ्स। मेडिकेटेड बाथ जो है ये आपको स्पा में जाके आपके डॉग को दिलाना पड़ता है। नाउ ये एक मेडिकेटेड बाथ से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 3 से 4 मेडिकेटेड बाथ जो है वो लेने पड़ते हैं। अब इस मतलब मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करती हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है। तो मेरे डॉग को जब टिक हुए थे तो मैंने मेडिकेटेड बाथ जो है वो उसको करवाया था। अब उससे हुआ क्या ना, उससे उसकी बॉडी से टिक्स छोड़ना शुरू तो हुए, बट हो क्या रहा था ना कि वो टिक्स जो है वो जिंदा गिर रहे थे, वो मर के नहीं गिर रहे थे, ठीक है। तो अब जब टिक जिंदा गिर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब मैं पूरा टाइम तो मेरे डॉग के बाजू में बैठ के वो एक एक टिक को पकड़ पकड़ के मारूंगी तो नहीं, या उसको फेंकूंगी तो नहीं, करें। सो ये प्रोसेस में हुआ क्या, जो टिक्स छोड़ रहे थे ना बॉडी, वो लोग क्रॉल करते करते मेरे घर में सब जगह पे घुस गए एंड उन्होंने अपना घर बना लिया, ठीक है। सो आई हैड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली उनको जड़ से निकालना था, करेक्ट। सो आई पर्सनली डोंट प्रिफर टिक आई मीन मेडिकेटेड बाथ। इफ़ एट ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके डॉग के फेवर में गया हो या यूजफुल था मेडिकेटेड बाथ, या किस तरह का मेडिकेटेड बाथ आपने लिया था, तो आई वुड बी ग्लैड टू नो अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज पर्सनली मेरे तरफ से आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मेडिकेटेड बाथ। सो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में डिटेल पता है, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लर्न अबाउट दैट थिंग। अब इसके अलावा जो होता है मेडिकेटेड बात हो गए, अब उसके अलावा होता है टिक कॉलर, ठीक है। अब टिक कॉलर जो है सो मेरे पास ना मैंने एक रखा हुआ है, मतलब ये टिक कॉलर जो है ये मैंने रिसेंटली जब रेक्स को टिक्स हुए थे तो मैंने यूज़ किया, मतलब मंगवाया था। बट बाद में क्या हुआ, उसके टिक्स जो है मैंने कुछ और यूज़ किया तो उसके वजह से सारे निकल गए, तो फिर मैंने ये यूज़ नहीं कर पाई, तो मेरे पास ये था। सो ये इस तरह का होता है एंड इसमें क्या होता है, सो ये टिक आप इसको डॉग के यहाँ पे लगाते हो एकदम टाइट, ठीक है। तो जब ये आप लगाते हो ना, सो ये जो बेल्ट है ना इसके अंदर पूरा मेडिकेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, मतलब ये जो इसमें सॉरी, सो ये क्या करता है, जब ये टाइटली आपके डॉग के स्किन के ऊपर चिपका हुआ रहता है ना, तो ये बाद में मेडिसिन जो है ये रिलीज़ करना शुरू करता है, जिसके वजह से जो टिक्स है वो बॉडी जो है वो छोड़ देते हैं। सो दिस इज समथिंग आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट इज़ क्वाइट रिलायबल, बट अगेन यू हैव टू अगेन ट्राई फॉर योर डॉग एज वेल, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल वर्क आउट एंड इट मे नॉट वर्क आउट और इट मे वर्क आउट एज वेल, ठीक है। इसके अलावा द अदर वन इज़ spot-ons. Spot-ons are something which I really love to use. So whenever I have been using it since last 7 years.
तो जब भी मेरे डॉग्स को अगर टिक्स आते हैं तो स्पॉट ऑन इज समथिंग विच आई यूज़। देयर आर वेरियस कंपनीज विच आर अवेलेबल जिसके स्पॉट ऑन आप ले सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, जब इसको पहले तो कैसे लगाना होता है आप एक बार चेक कर लेना। बट दीज आर वेरी रिलायबल बिकॉज ये आप डॉग के जो गले से लेके उनका जो ये होता है ना, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है अगेन एट द स्किन। तो ये क्या करता है ना, ये जब आप लगाते हो उसके कुछ आवर्स के बाद या अगले दिन तक ये सारे टिक्स जो है ना वो मर जाते हैं। ठीक है, अब अगेन टिक्स मर जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी जब टिक्स मरते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट उनका मर के गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि नहीं तो घर पे ना पूरा उनका ब्रीडिंग चालू हो जाता है यार। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ वो चीज़ से। सो येस, उनका मर के गिरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो स्पॉट ऑन है ये वो चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। सो स्पॉट ऑन इज समथिंग आई रियली लव एंड आई रियली रिलाई ऑन सिंस लास्ट ईयर। स्पॉट ऑन्स वर रियली गुड, बट आई थिंक नाउ माई डॉग इज बिन क्वाइट रेजिस्टेंट ऑन दैट। सो अभी उसको स्पॉट ऑन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। But yes, spot-ons are something which I have been using since a very long time, and I would suggest that if you want, you can definitely go for it. It's a reliable source. Okay. अब after spot-on, there is something which has been recently introduced in the markets, which are chewable tablets. Okay. अब ये चीज़ पे ना बहुत सारी डिबेट ऑलरेडी चल रही है, and there is no final conclusion because vets are preferring these tablets, and there are some people who have quite a lot read about this product and everything, and they say that it is not safe for your pets. I would like to say my personal experience what I had done. So अभी जब इस साल मेरे डॉग को वापस टिक्स हुए थे, so मैंने वेट को कंसल्ट किया। मैंने उनको बताया कि मेरे डॉग के ऊपर ना सारी चीज़ें ट्राई करके हो चुकी है, मेरे डॉग्स के बॉडी से टिक्स छूटते नहीं हैं। दिस टाइम आई हैव टू टेक सम मेजर एक्शन बिकॉज जो लास्ट ईयर हुआ था वो मुझे वापस इस बार ही रिपीट नहीं करना था, जहाँ पे वो लिटरली डेथ बेड पे चला गया था। करेक्ट। सो डॉक्टर ने मुझे ये च्यूएबल टैबलेट जो है वो रिकमेंड किया। इट इज़ ऑन अ लिटिल कॉस्टलियर एंड, बट आई वॉज लाइक कि नहीं ठीक है, वट एवर इट इज़, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट आई हैव मे बी एंड आई हैव टू ट्राई। सो आई गॉट द टैबलेट। मैंने रेक्सू को दे दी, उसने खाई। रात को दी थी मैंने करीबन 8 बजे के आसपास। जब हम सुबह सो के उठे तो सारे जो उसके बॉडी के टिक्स थे ना वो सारे ज़मीन पे ऐसे मरे पड़े हुए थे। सो एंड उसके बाद मतलब पिछले साल अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले साल till 3.5 to 4 months I had tried each and everything to remove the ticks, but नहीं निकले थे, and he ended up getting internal infections and kidney failure and everything, and बाद में whatever वो बच गया जो भी है, ठीक है। बट दिस ईयर मुझे उतने लंबे प्रोसेस से जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही वो पकड़ लिया, मैंने च्यूएबल टैबलेट दे दी और उसकी वजह से वो निकल गए। सो आई थिंक it is a nice thing, but still if at all you are planning to give this thing, I would request you to consult your vet. Please do not recommend this product to anyone randomly. इसको आप वेट को पूछ के अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही आप जो है ये टैबलेट जो है वो दे, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल चुका है एंड देर इज़ नो पर्टिकुलर कंक्लूजन वेदर टू गिव और वेदर टू नॉट गिव। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज गुड विथ इट, नथिंग रॉन्ग। So yes, that is all for the video. The things that we have learnt, please keep that in mind. If you have anything else that you would like to tell me, maybe मैंने वो ये वीडियो में मिस आउट कर दिया होगा, so you can definitely tell me about it in the comment section, and I definitely would like to learn about it, know about it. इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोस आई एम गोइंग टू कीप रिलीजिंग। एंड आपके अगर कोई फ्रेंड्स भी है जिनके लिए ये वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम एज वेल। एंड या 2 थिंग्स जो आपको याद रखनी है, सॉरी पीछे से वापस आगे। सो 2 चीज़ याद रखना, जब टिक्स दिखे हैं बस तभी का तभी उसको इरेडिकेट करना है, हमको प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस में नहीं जाना है। तभी का तभी अगर ख़त्म करोगे तो ये बीमारी जो है ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। इट विल नॉट किल योर डॉग, बट ये जितनी लंबी खींचेगी द चांसेस ऑफ डेंजर आर दैट मच ओनली, ये उतनी ही फेटल होती जाएगी। सो येस, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।